So today we'll start with EC2. What is EC2? What are services in EC2? What are things we have to learn in EC2, and so on. So as a topic defined, what is EC2? Options available, EC2 type, PBS volume, and so on. So what is EC2? EC2 is the Elastic Compute Cloud or Elastic Cloud Computing is a web service that provide resizable compute capacity in cloud. Okay, so basically these are the machines. Okay, so these are the machines which we can take from Amazon and do our computing. So what is computing? What is computing? Anything related, anything you do on the computer. So if you require anything, so you want to do your task, you want computer to do your task, so you require a machine, you require a RAM, you require a CPU. There's a primary thing. You require a storage which will support that CPU and RAM. That's what our requirement is, right? Now, how we can do that? It is just a virtual machine in the cloud. It's just a virtual machine in the cloud, and it reduces the time required to obtain and boot new server instance to minutes, allowing you to quickly scale capacity both up and down and computing required changes as your computing required changes. So you can take any type of machine as you wish. If you wish to have a small machine, you can configure in the console and you will get a small machine. If you think that now your requirement has increased, you want a huge machine or you require a machine with bigger capacity or large capacity, so you can do that also. Even you can upgrade the existing machines to a higher configurations. We will see all these things as we are going to learn further. So Amazon EC2 machine has changed the economy of cloud computing by allowing you to pay for the capacity that you use rather than previously when you want to go out and buy a physical server. Simple. If we wanted to set up a office, if you want to set up a machine, if you want to set up or launch an application or service, first of all we have to purchase the physical server. We have to set up that server, and then we will able to start our development or launch a new service. Now it's easy, just we have to pay hourly charges. We can opt for any type of machine from the cloud. Simple. Okay. Amazon provide developers the tool to build failure resilient applications and isolate them from common fail scenarios. So after EC2 machine came in the market, it gave a developer more flexibility about the hardwares as well as designer resilient architecture. Resilient means fail resilient architecture means where your application will not fail, where your system will be up and running, right? Can you blame if Amazon is not working? Sorry, if your Hotstar is not working, can you blame? Uh, yeah, Hotstar can blame Amazon that because of Hotstar, because of Amazon, our application has gone down. You have taken a subscription of Hotstar, and if the Hotstar service is not working, can they give a reply to you as that they have hosted their website at Amazon and Amazon is down? So they can't give this excuse now. Instead, is down. Instead, they have to design their architecture such that it should be fault tolerant, it should be resilient,
and it should not fail. So there are so many applications, there are so many scenarios which Amazon itself have given on their website, that previous developers and previous people have already issued, and even Amazon has incorporated that thing in their machines. ओके, सो काफ़ी चीज़ें जो फेलियर्स जो आपको ऑन प्रीमाइस में मिलती है या सिनेरियोस जो बाकी लोगों को भी हो रही है, वो सारे आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म. इतना क्लियर है अभी व्हाट इज बेसिकली EC2 मशीन इज. You can take machines on rent. That's what EC2. Now, Amazon provide machines on multiple options are available. मतलब कि आप कैसे ले सकते हैं machines. अब जैसे आप ओला उबर आज की तारीख में लेते हैं, राइट. Nowadays, you take Ola, Uber cab service on rent. Agree? So there are options. On what factor do you want to take that Ola and Uber on rent? Am I audible? There is no response today. Okay. So there are multiple options on which you take a four-wheeler on rent. So first is on-demand basis. On-demand means whenever you require the car, you will order through the app, and you will do your work and return the cab back. That's the on-demand. Second is when you go on a daily basis, reserve basis. Reserve basis means you want a car to be used for a longer period of time. I'm not using. I'm not saying that I'm going to use for just 1 day or 1 hour. I'm going to use the car for 15 days, 1 month, 1 year. So I can ask for a same thing from the uh, Ola and Uber, saying that I'm going to use your car for a longer period of time. Please have me a discount, and that car is reserved for me. Nobody else is going to use that car, right? That's the reserve information. Reserving a car. Second is uh, schedule base. It's you are taking a car on a morning basis. You go to your office on a daily basis. So you book a car that the driver will come and pick up you. The same driver will come and pick up you at 8 a.m. in the morning and drop to your destination. So these are the different categories on which you opt for a car. You reserve the car. You bring them on demand. Okay. Spot instance. Spot instance is similar to something like what Ola and Uber do with the surcharges. That when demand is high, they charge you high amount of as compared to the normal charges, right? So but here in Amazon it's reverse. I will explain you. And dedicate host, what is dedicate host? uh, how many of you are using Ola and Uber on a share basis? ठीक है. So first of all, let's understand how Amazon provide you the physical server, how Amazon provide you the machines. So assume that this is your RAM. Even I have, okay. Assume that this is your RAM. This is of 64 GB. It's a physical server RAM which Amazon has their on premise. जो उनके डेटा सेंटर्स में जो मशीन्स होती है, अज्यूम करो कि एक रैम है जिसका फिजिकल वो 64 GB का है, राइट. नाउ you came to Amazon. You need a machine with, let's say, 4 GB RAM. Okay, let's say you ask a machine with 4 GB RAM. So Amazon क्या करेगा, ये पूरा मशीन आपको 64 दे देगा या उसमें से पार्ट करके देगा?
फिजिकली पार्ट बनाएगा या वर्चुअल पार्ट्स बनाएगा? ओके, यस, वर्चुअल बनाएगा. कैसे बनाएगा वर्चुअल? So what Amazon will do, it will split this 64 GB into small chunk and it will divide it and provide 4 GB for to you. Okay, 4 GB to you. Next, another person comes. He or she required 10 GB instead of 4 GB. So what Amazon will do? Amazon will split this into further 4 GB. This is a physical RAM, but they are distributing or splitting the RAM virtually. सच में उसको डिवाइड काट नहीं रहा है, सच में उसको काट नहीं रहा है, उसको वर्चुअली डिवाइड कर रहा है. अब जैसे इसका काम खत्म हो गया तो अमेजोन को उसने रिटर्न कर दिया मशीन, अमेजोन को उसने मशीन रिटर्न कर दिया. सो ये अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, सो मैं उसको जो अवेलेबल है उसको जो यूज में उसको रेड में कर रहा हूँ, जो अवेलेबल है उसको ग्रीन में कर रहा हूँ. अब ये अवेलेबल हो जाएगा मशीन, राइट. अब नेक्स्ट बंदा आया, उस उसको चाहिए था सिर्फ 1 GB, उसको सिर्फ 1 GB चाहिए था. सो या अमेजोन विल अगेन डिवाइड, यहाँ से डिवाइड कर सकता है, यहाँ से कर सकता है. ओके, उसने दे दिया 1 GB रैम. So this is how actually Amazon splits the physical server into virtual machines. Okay, I will show you one picture. Yes. Okay, so assume that you have machine of 16 GB, you have 16 cores, and there is a terabyte, 1 TB machine. So you have a demand of 4 GB, right? You demanded Amazon machine with the 4 GB and 4 core. So Amazon will split this physical server into small virtual machines and provide you the EC2 machine. ये एक मशीन बना के आपको दे देगा. इवन इट रिक्वायर हार्ड डिस्क, सो वो भी आपको प्रोवाइड करता है. So this is a small example what Amazon gives you the machine. Okay, so there are so many examples here, diagrams are here. You can see this is a server. एक सर्वर से छोटे 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 मशीन उसने क्रिएट की है. These are the servers. These are the machines which use memory. On top of that, we are creating virtual small machines where you are installing your application, you are installing your OS, and these are the virtual machines. So actual physical server होता है, उसको छोटे छोटे servers में divide करते हैं. Clear? ये चीज़ किसी को समझ नहीं आता मुझे बताओ. Is it clear? Now you can see this machine, this RAM is shared with multiple people. ये जो RAM है, ये जो machine था, it is shared with multiple people. हो सकता है. Only single machine, a single machine or single hardware is shared with multiple people, multiple tenants, multiple users. Now you might have a requirement where you don't want this setup where you are sharing the hardware with multiple people.
There can be two things. One is performance degradation is there because the underlying hardware is shared with multiple people, so there will be degradation in the performance. And second problem is that the security. Okay, if even though Amazon is saying that your data, your application secure as you are running, as they are splitting the RAM in such a way that no data is shared between two users. No information, no data is exchanged between two tenants, even if they are sharing the same physical hardware. Okay, कोई भी data leak नहीं होता. But still, for your own security, for or your own issues, you want a full dedicated server to you. The server should be fully dedicated to you. चाहे वो आप 1 GB मांगो या 10 GB मांगो, पर ये पूरा का पूरा जो रैम है वो आपको डेडिकेट हो. तो अगर आप बोलते हो कि मुझे 4 GB का मशीन चाहिए एंड इट शुड बी डेडिकेटेड टू मी, so either Amazon will provide full 64 GB machine जिसमें कोई भी नहीं होगा, or they will provide the machine with 4 GB RAM. So full 4 GB RAM or full actual physical server will be dedicated to you, जो physical server है. And second problem, how many of you are using antivirus, or antivirus, or how many of you have purchased the few services, few licenses from internet, just like antivirus, Windows, you might have purchased. So can you install the same antivirus to multiple machines, and if yes, and how, if no, and how they track it? So basically that license is mapped with your machine's MAC address. Every machine has a unique MAC address. Every machine has a unique MAC address. I think ipconfig will give me. This is my physical address of my machine. So that license is bind to the physical address, means actual MAC address of the machine. हर machine का एक physical address रहता है, right? And that is unique, just like a chassis number for a car. Okay, so if you are using some licenses, थर्ड पार्टी लाइसेंसेस अगर आप यूज़ कर रहे हो अमेजोन के ऊपर, उस केस में उनको उन लाइसेंस का ऐसा रहता है कि कोई दूसरे दूसरे ओएस या दूसरे लोग उसको आपके हार्डवेयर को यूज़ ना करें. अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो इस मशीन के मैक एड्रेस से लिंक हो जाएगा. अगर यही मशीन को दूसरा यूज़ कर रहा होगा और वो भी बाई चांस सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना लाइसेंस में. समझ आया? If you are using some licenses and you want to be have the hardware unique or dedicated to you, there are options are there. तो share basis पे नहीं होना चाहिए. So these are the couple of ways which Amazon also provide the machines to you, just like Ola, Uber, or provide you different category to use their car on demand, reserve basis, full car dedicated to your share basis. Okay, so first is on demand. What is on demand? Allow you to pay fixed rate by the hour or even by the seconds with no commitment. मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, मुझे आज चाहिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर वापस कर दूंगा. आधे घंटे के लिए चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन मी एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग चार्ज. Okay, so there is no commitment level from me. It's a purely on demand basis or रिक्वायरमेंट बेसिस कि जब मेरे को रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं ऑन डिमांड मशीन ले लूँगा. सेकंड इज रिजर्व इंस्टेंस. Reserve instance, basically I'm reserving a machine for me for a longer period of time, where I will say that I'm going to use your machine for n number of hours. Okay, so please give me some discounts. So Amazon will give you some discounts, right?
So this is the reserve instance. So provide you with the capacity reservation and offer a significant discount on hourly charges for instance for 1 to 3 years term. सिंपल है कि वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा वो आपको वो देगा, डिस्काउंट्स मिलने चाहिए. Hmm. Yes. So basically you are saying ना when you go to your market and किसी को भी बोलते हो कि मैं ये जो आपका क्वांटिटी है, मैं तो अगर आप छोटे से लेते हो तो वो बोलता है जो भी मेरे उनके प्राइस है उस हिसाब से दोगे. बट व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और इफ यू गो फॉर अ लॉन्गर और यू जब कुछ आप बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तो दे विल गिव यू डिस्काउंट्स राइट. कि अगर आप बोलोगे मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, आप 1-2 किलो खरीद रहे हो, आप 100 kg या क्विंटल खरीदते हो तो प्राइजेस चेंज अकॉर्डिंगली राइट. सो दैट्स व्हाट ऑन डिमांड मतलब कि जितना प्राइस है ठीक है उतना ही देना है. देयर इज नो बाउंडेशंस. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द रिजर्व इंस्टेंस, अब रिजर्व इंस्टेंस मतलब क्यों, रिजर्व कब कहाँ काम आते हैं आपको. आप अपने मशीन चला रहे हो जो कि बहुत बड़े बड़े हैं राइट. आप कुछ सॉफ्टवेयर चला रहे हो जो कंटिन्यूस है, जैसे हॉटस्टार है, कंटिन्यूस चला रहा होगा कुछ, देयर माइट बी राइट. हॉटस्टार जो आपको सर्विस दे रहा है वो उसमें सर्विस पीछे कंटिन्यूस चला रहा होगा. सो उनको मशीन चाहिए रहेगी और वो मशीन को 24 घंटे चालू रहते हैं. ठीक है. स्पॉट इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डेडिकेट मैंने आपको बताया, फिजिकली इसी टू मशीन सर्वर्स डेडिकेटेड फॉर यू. दे कैन रिड्यूस हेल्प यू टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय अलाउइंग यू टू यूज एग्जिस्टिंग सर्वर बाउंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस. कोई आप लाइसेंस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो जिसको सिंगल फिजिकल हार्डवेयर चाहिए, ठीक है. नाउ व्हाट इज स्पॉट इंस्टेंस. Spot instance it basically means there are machines which are there with Amazon and you want discounts. This is a part of on demand only. ये ऑन डिमांड जैसे ही है. बट अगर अमेजोन बोलता है कि ऑन डिमांड के प्राइस जैसे 10 रुपये मशीन के है, अब रिजर्व पे जाओगे तो 5 रुपये का मिल जाएगा. डेडिकेट में जाओगे तो हो सकता है कि आपको 15 रुपये लगे क्योंकि आपका मशीन पूरा आपके ऊपर है. बट स्पॉट इंस्टेंस कैसा होता है, वो ऑन डिमांड जो मशीन है, आप बोलोगे नहीं मेरे को 10 रुपये पे नहीं करना, मेरे को 2 रुपये में दे दे, ठीक है, मुझे 2 रुपये में दे बिकॉज तेरे पास पड़े हुए एक्स्ट्रा. करते ना हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ कि हाँ तेरे प्राइस हो गए पत्ते पर ख़राब हो जाएगा, मेरे को सस्ते में दे दे 4 रुपये में. यू डू सच थिंग. So what is this spot instance? Basically, you ask Amazon for the machine which they are not using because there will be a number of machines with Amazon. उनके वो अगर वो मशीन है जो वहाँ तो चलते हैं ना एक्चुअल फिजिकल सर्वर्स, तो उनके चालू रहते हैं ना 24 घंटे मशीन. ये थोड़ी जब आप बोलोगे जब वो स्टार्ट करते हैं मशीन्स, द मशीन विल बी रनिंग 24/7 इन देयर एक्चुअल फिजिकल डेटा सेंटर्स. सो अज्यूम करो उनको मेंटेन करने के लिए या उनके चार्जेस करने के लिए उनको 2 रुपये चाहिए. 2 रुपये लगता है उनको मशीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. सो अमेजोन बोलता है ओके मिनिमम उनका प्राइस है 3 रुपीज़. ऑन डिमांड वो 10 रुपये मांग रहा है आपसे, ऑन डिमांड वो 10 रुपये मांग रहा है विथ प्रॉफिट, ओके. बट मिनिमम दैट दे कैन बेयर इज 3 रुपीज़. सो वो बोलेगा कि 3 रुपीज़ के ऊपर आपको जो रेट चाहिए आप बोलो, अगर उसको लगेगा तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा. सो आप बोलते हो ओके मेरे को 4 रुपये में दे दे. नाउ दे विल सी दैट ओके 3 रुपये है, 4 रुपये में दे सकता हो क्या. सो दे विल गिव दैट मशीन टू यू एट 4 रुपीज़. ओके. सो यू कैन बेसिकली बिड एक्चुअल प्राइस आप अपने आप से बिड कर सकते हो. So you can enable you to bid a price and you can choose whatever price that you want for the instance capacity, providing for even greater saving if the application has flexible start and end time.
ओके, अब इसमें कुछ कैचेस है जो मैं बाद अभी आपको फर्दर बताता हूँ. सो ऑन डिमांड, detail about how the machines will be getting for the on demand. Perfect for the user that want for low cost flexible flexibility of AWS EC2 machine without paying any upfront or long term commitment. Example, application with short term spiky unpredictable workload that cannot be interpreted. मुझे नहीं पता कि काम कब आएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, सो मैंने अमेजोन से कभी भी जाके मशीन ले लूँगा जब रिक्वायरमेंट आया मेरे पास. ठीक है, दैट इज अ ऑन डिमांड बेसिकली. एप्लीकेशन बीन डेवलप और टेस्टेड ऑन अमेजोन फॉर द फर्स्ट टाइम. कहाँ कहाँ यूज होता है? जनरली जब एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं उस टाइम. रिजर्व इंस्टेंस, एप्लीकेशन विद द स्टेडी स्टेट और इवन प्रेडिक्टेबल यूसेज. अब मुझे पता है कि मेरे को डेली मशीन चाहिए, ठीक है, डेली मैं यूज करता हूँ, मैं उसको रिजर्व इंस्टेंस ले सकता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑन डिमांड. ओके, that is a reserve instance. The application that require reserve capacity. User can make upfront payment to reduce the total cost even further. कभी कभी आप कोई कर रहे हो ना, ले एडवांस ले मुझे कम पैसे में दे. that is that is a reserve instance. So reserve instance has some categories: standard reserve instance, convertible reserve instance, scheduled reserve instance. Standard reserve instance means you will get a discount up to 75% from the on demand. ऑन डिमांड मशीन से आपको 70% डिस्काउंट में मिल जाएगा. Convertible basically means you have taken there are some machines which will be converted from on demand to reserve to on demand. ओके कि आपने रिजर्व इंस्टेंस पे आप सॉरी ऑन डिमांड मशीन चला रहे थे, उसको आज आपने रिजर्व इंस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया और वाइस वर्सा. सो अप टू 54% ऑफ on demand. These are basically have the capability to change the attribute of their reserve instance so long as the exchange result in the creation of the instance of equal or greater value. So वो कन्वर्टेबल है कि आप ऑन डिमांड उसमें चेंज कर सकते हो. Schedule reserve instance. These are available to launch within a time specific window that you reserve. This option allow you to match your requirement to predict the recurring schedule that only requires fraction of a day or week. मतलब मैं पूरे दिन यूज़ नहीं कर रहा मशीन, मैं बोलता हूँ कि रात के मुझे मेरे 12 बजे एक मेरा को रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि 6 बजे चलती है, तो मैं इतने 6 घंटे के लिए ही सिर्फ मशीन रिजर्व करूँगा डेली. ओके, आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर डेली. मैं 1 साल तक यूज़ करूँगा मशीन, मैंने कहा 24 घंटे के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ही चाहिए. दैट इज माई रिजर्व कोटा. सो दैट इज अ शेड्यूल बेस कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक मिलेगा. ओके, दैट इज अ रिजर्व इंस्टेंस. Okay, spot instance I will explain you. Dedicate host. Useful for regulatory requirement that may not support multi-tenant visualization. बेसिकली मैंने जो बताया कि आपको जो मशीन है अंडरलाइन हार्डवेयर शेयर होते हैं. अगर आपको ऐसे मशीन चाहिए जिनको आप सिर्फ आप ही यूज़ करें और कोई यूज़ नहीं करे, सो दैट इज़ द रिजर्व इंस्टेंस. सॉरी, डेडिकेट होस्ट जो कि आपके लिए आप वो ही यूज़ करेंगे और कोई नहीं करेगा. Great for the licensing which does not support multi-tenant or cloud deployment can be purchased on demand. ओके, अगर आप ऑन डिमांड पे जाओगे तो वो चीज़ नहीं होगा. ऑन डिमांड में कोई ना कोई अंडरलाइन हार्डवेयर से यूज़ कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा. अगर आपको पूरा हार्डवेयर आपको डेडिकेटली चाहिए, सो यू हैव टू गो विद द डेडिकेट होस्ट. क्लियर? कैन बी परचेज एज अ रिजर्व इंस्टेंस एज वेल. डेडिकेट होस्ट और प्लस रिजर्व इंस्टेंस कंबाइन कीजिए, यू विल गेट अप टू 70% ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम द ऑन डिमांड मशीन्स. ठीक है. एंड लास्ट, स्पॉट इंस्टेंस.
व्हाट इज स्पॉट इंस्टेंस? एज आई सेड यू विल बिड द अमाउंट। सो अगर अमेजोन 10 रुपये में दे रहा है, आप उससे बोल सकते हो कि भाई तेरा मशीन खाली पड़े, मुझे 4 रुपये में दे दे। सो एप्लीकेशन दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम, एप्लीकेशन दैट कैन ओनली बी फ्लेक्सिबल एट अ लोअर फिजिबल एट लोअर कॉस्ट, कि मुझे अपने पैसे भी बचाने हैं, सो मैं स्पॉट इंस्टेंस को कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर जब ऑन हमको स्पॉट इंस्टेंस अवेलेबल ही है, तो मैं ऑन डिमांड क्यों यूज़ करूँ? कि जब मुझे पता है कि अमेजोन के पास मशीन पड़े होंगे और वो सस्ते में दे देगा, तो मैं ऑन डिमांड मशीन यूज़ ही क्यों करूँ? दोनों में फ़र्क तो कुछ है ही नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि पैसे देने के लिए, और डिस्काउंट भी बहुत मिल रहा है। सो स्पॉट इंस्टेंस का एक प्रॉब्लम ये है कि आपने एक मशीन ले लिया अमेजोन से ऑन डिमांड पे, ठीक है। अब अमेजोन के पास समझो कि सारे मशीन खत्म हो गए, सारे मशीन खत्म हो गए हैं, ठीक है। और एक बंदा आया, वो मांग रहा है नया मशीन। क्या वो आपसे मशीन लेके उसको दे देगा क्या? आपने 10 रुपए दिए, वो उसको अमेजोन को बोलता है कि मैं 20 रुपए देने को रेडी हूँ, अज्यूम करो कि आपसे लेके उसको दे देगा क्या अमेजोन? बताइए, देना चाहिए क्या ऐसा? कि आप अभी मशीन आप यूज कर रहे हो और आपने 10 रुपए दे दिए उसको, तो दूसरा बंदा आया, वो बोलता है कि मैं ज्यादा पैसा दूंगा, अमेजोन उसको मशीन देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, आइडली नो। ओके, सो ऑन डिमांड में यही होता है। सो ऑन डिमांड में Amazon will not take the machine. It's up, if you have taken the machine, it's your responsibility to return back the machine. Amazon आपसे कभी भी मशीन नहीं लेगा। But spot instance is different here, because spot instance में आपने कितने पैसे दिए उसको? 10 रुपए दिए या 4 रुपए दिए? आपको दूसरा बंदा आके बोलता है कि मैं 6 रुपए दूंगा, ऑन डिमांड से कम ही है बट 6 रुपए दूंगा, तो अमेजोन उसको देगा या आपको देगा? इस देखो, डेडिकेट में क्या अमेजोन ने 10 मांगे थे, आपने 10 रुपए दिए, ठीक है। जो ऑन डिमांड जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ऑन डिमांड में अमेजोन ने आपसे 10 रुपए मांगे थे, आपने 10 रुपए दिए। बट स्पॉट इंस्टेंस में अमेजोन ने मांगे तो 10 रुपए है, पर आप दे सिर्फ 4 रुपए ही रहे हो। सो कल को कोई 6 रुपए दे रहा है, तो अमेजोन उसको दे देगा मशीन, वो क्यों अपना लॉस करेगा? राइट। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्पॉट इंस्टेंस, कि कभी भी अमेजोन वो मशीन आपसे ले सकता है। Anytime the machine will be taken from you from if you are using a spot instance. There is no guarantee that the machine will be available full time with you. So Amazon आपको notification, yes, yes. So Amazon do send you notification that this machine will be taken from you in 15 minutes. Please save your work. ऐसा notification आता है, ओके। बट इट्स अ रिस्क, क्या वो कभी भी आपसे ले सकता है, ठीक है। और या दैट इज व्हाट इज कि वो उसको अमेजोन को फर्क नहीं पड़ता कि मशीन यूज में है या नहीं है। इट विल टेक द मशीन एनी टाइम इट दे फील लाइक, ओके। बट using the spot instance you can save the companies huge amount of money, okay. So I will give you example. When I was using one of the application, when we were running the application, we were paying nearly $1,000 a month। एक सर्विस को यूज करने का कितना पैसा लग रहा था? $1,000 a month, okay. Then spot instance came, that time they launched or somebody recommended to use spot instance। So हमने देखा, हमने समझा, हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, फिर समझ आया कि अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट अप टू 300 रुपीज, सॉरी $300, ओके। टू $300 तक हमने इसको रिड्यूस कर पाएंगे। बट व्हाट इफ आवर एप्लीकेशन फेल्स, कि अचानक से उसने ले लिया तो? सो वी हैव रीडिजाइन आवर सिस्टम सच दैट अगर कुछ फेलियर होता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट डूइंग सम लाइव
जो आप एप्लीकेशन बना देते हैं, हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। ओके, डेटा प्रोसेस करना वो अब पीछे ही होता है, ऑफलाइन रहता है, कुछ भी यूजर बेस पे नहीं रहता। तो अगर एप्लीकेशन क्रैश भी हो गई, तो अगर मैं रिस्टार्ट भी कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को कोई भी इशू नहीं आएगा, मेरा कोई भी बग नहीं होगा। समझ आया? सो वी हैव डिजाइन सच दैट कि अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ स्पॉट इंस्टेंस, मेरा प्रोसेस स्टॉप हो गया, so we just have to restart the machine or restart the process again, and we are happy. So in a average of 6 months, when we are running this application, we have reduced our cost from $1,000 to $200 to $300. Client का हमने 1/3 पैसा बचाया, and with a failure rate of nearly 3 to 5 times in 6 months. 6 महीने में स्पॉट इंस्टेंस के कारण ऑन एवरेज 3 से 5 बार फेलियर हुआ है नियरली, ऐसा मुझे याद है। सो महीने में एक बार फेल हुआ है। अगर आप डेली रन कर रहे हो कोई जॉब 30 दिन, उसमें से एक बार फेलियर हो रहा है, सो यू कैन मिटिगेट दैट, यू कैन टेक दैट रिस्क। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, मतलब वो पूरा प्रोसेस मैंने रिस्टार्ट किया तो उसमें मशीन फिर मैं उनसे लूँगा, वो स्पॉट स्पॉट मशीन से देगा, पर मैंने थोड़े टाइम बाद करा, नॉट इमीडिएटली। ठीक है। सो वो तो हाँ, वो पूरा प्रोसेस रहता है। यस। तो पूरा पूरा हमने मशीन जितने भी थे उनसे वापस लिए, उस पर अपना एप्लीकेशन रन किया, और हमारा जॉब खत्म हो गया, हम लोग मशीन रिटर्न कर देते हैं। इट्स नॉट 24/7, इट्स अ डिमांड बेसिस, कि जब मेरे को काम होता है जब भी मैं रन करता हूँ। ओके। सो spot instance is great when you know what are the cons and advantage of spot instance. You can't use spot instance in all your application, पहले बता रहा हूँ। अगर आपके कस्टमर लाइव है, लाइव कस्टमर्स है, okay, and they are using your application from EC2 machine, in that case your customer might get impacted. Example, आप कभी कभी आपने देखा होगा हॉटस्टार चल चलते अचानक से बंद हो जाता है, कभी कभी आपको स्टक हो जाता है। हो सकता है कि आपका जो चल रहा हो वो हॉटस्टार EC2 मशीन पे चल रहा हो, कनेक्ट कर रखा हो, और बिकॉज कि वो मशीन क्रैश हो गया, आपका कनेक्शन लॉस हो गया। सो आप एक बार आप जब रिफ्रेश करते हो तो दूसरे मशीन पे आप कनेक्ट कर देते हो सकता है। हॉट अज्यूम करो हॉटस्टार के पास है तो बहुत सारे मशीन्स चल रहे हो, ठीक है, कि जब आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो कनेक्शन आप ऐसा बनता है ना, कि हाँ जाओ आप ये मशीन पे कनेक्ट कर लो, ये मशीन पे कनेक्ट कर लो। जब इतने सारे मशीन चल रहे हैं, यहाँ पे कोई कस्टमर्स कनेक्ट कर रहे होगे, अभी क्रैश हो गया मशीन, तो आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपको दूसरे मशीन पे कनेक्ट हो जाएगा। बट दिस इज अगेन हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर फेसिंग दिस इशू। ये भी अच्छे अच्छे से काम हो जाएगा, बट वही आपको कंडीशन ये है कि आप कितना वो फेलियर स्पॉट इंस्टेंस के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? स्पॉट इंस्टेंस अच्छा भी है और उसका डिसएडवांटेज भी है। सो इफ अ स्पॉट इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड बाय अमेजोन, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी चार्ज फॉर पार्शल आवर यूजर्स। जब अमेजोन ने ले लिया ना मशीन आपसे, तो अमेजोन बोलता है ठीक है मैं तुमसे पैसे भी नहीं लेता, बिकॉज मैंने बंद किया है, इट्स फ्री। जितना भी यूज हुआ, आधे घंटे यूज हुआ, वो आपको कोई बात नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। बट इफ यू टर्मिनेट योर सेल्फ, अमेजोन विल चार्ज फॉर द फुल यूसेज ऑफ दैट मशीन। समझ आया? So this is how you will get the machine from Amazon. These are the different conditions. Okay, I'm not going further on this. I will show you something on the console. मैं थोड़ा बहुत आपको कंसोल में कैसे EC2 मशीन बनाते हैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है। ओके। So let me know this machines on EC2 machine will be region specific or how? It is a global. It should be a global service or it should be a region specific. So if you see here, we are in Mumbai.
So basically, this service is region specific as well as availability zone specific. आप एक मशीन ले रहे हो अमेजोन से, राइट? अलग अलग लोकेशन से मशीन ले सकते हो क्या? एक ही मशीन के अलग अलग जगह से आ सकते हैं क्या पार्ट्स? ये जो मशीन है, या यहाँ पे जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था कि रैम, सीपीयू, इवन स्टोरेज, ये तीनों अलग अलग जगह से हो सकते हैं क्या? एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, चलेगा क्या? आपकी मशीन चलेगी क्या कभी? सो एवरीथिंग शुड बी इन द सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, सब पास में होना चाहिए ना? So EC2 machine is a region specific as well as it moreover availability zone specific machines. So आप हमेशा याद रखो कि आप कौन से रीजन में काम कर रहे हो. अगेन ऑलवेज रिमेंबर एंड बी कॉशियस कि आप कौन से रीजन में काम कर रहे हो. अगर आप रीजन चेंज कर लेते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा अभी भी कोई मशीन चल रहा है क्या? कोई मशीन चल रहा है मुंबई में? नहीं. ठीक है. अगर आप मुंबई में मशीन चला रहे हो और आपने रीजन चेंज कर लिया वर्जीनिया में, तो ये वर्जीनिया में बताएगा कि आपके वर्जीनिया डेटा सेंटर में कोई मशीन चल रहा है क्या आपके अकाउंट के लिए. अगेन आप मुंबई में हो तो ये बताएगा कि मुंबई में कौन से मशीन चल रहे हैं. अगर आपने वर्जीनिया स्विच कर लिया तो ये बताएगा कि आपके अकाउंट से वर्जीनिया में कौन से मशीन चल रहे हैं. नाउ यू कैन सी देयर इज नो मशीन, बट यू कैन सी सिक्योरिटी ग्रुप आर 8 एंड सॉरी की वैल्यू आर 8 एंड सिक्योरिटी ग्रुप आर 10, बट मुंबई में अलग है. दिख रहा है मुंबई में की वैल्यू पेयर आर 3 एंड सिक्योरिटी ग्रुप इज 8. सो दिस आर डिफरेंट. सो रिमेंबर कि वो कौन से रीजन में आप काम कर रहे हो. अगर आपको ग्लोबल व्यू देखना है, यहाँ से देख सकते हो. एक उन्होंने नया फीचर निकाला है, ग्लोबल व्यू. ये पूरे आपको सारे रीजन एक साथ दिखाता है एक ही जगह पे. सो यू कैन सी हियर. बाकी जगह कोई भी मशीन चल नहीं रहा है. एवरी रीजन इन माई अकाउंट हैज 0 मशीन रनिंग. ओके. वॉल्यूम मतलब अंडरलाइन हार्ड डिस्क वो भी 0 है. सो योर ऑल दिस शुड बी 0. ठीक है. सो आप EC2 मशीन पे जाइए, मुंबई या वर्जीनिया, वॉट एवर यू फील यू कैन चूज. ओके. राइट नाउ ये वर्जीनिया में. सो बस रिमेंबर कीजिए कि आप कौन से रीजन में काम कर रहे हैं. अगर आपने दूसरे रीजन में काम कर रहे हो, दूसरे रीजन में सिलेक्ट हो गया, मूव हो गए, तो आपको ये नहीं दिखाएगा कि आपके वहाँ पे मशीन रनिंग है. और कल को अभी वर्जीनिया में अज्यूम करो आपने एक मशीन चालू किया था और आप मुंबई में स्विच हो गए और यहाँ पे 0 रनिंग दिखा रहा है, तो आप बोलोगे मेरे पास तो मशीन है ही नहीं. ठीक है, मैं लॉकआउट करके बैठ जाती हूँ, ये बैठ जाता हूँ. कल आके देखा, वर्जीनिया में देखा मशीन चालू पड़ी हुई है, यू माइट गेट चार्ज्ड, क्योंकि आपने वर्जीनिया डेटा सेंटर में जो मशीन बनाई है वो रनिंग है. क्लियर? So be very cautious in which region you are running. And again, EC2 is a chargeable service, but right now we are in free tier. Hope everybody in free tier. So free tiers में 720 hours per month आपको EC2 मशीन फ्री में मिलते हैं विद अ लिमिटेड स्पेसिफिकेशन. आप एक उसकी स्पेसिफिक मशीन है जो कि फ्री टायर में मिलती है. यू कांट ऑप्ट फॉर अ बिग बिग मशीन्स. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्टेंस EC2 मशीन को हम बोलते हैं इंस्टेंस. वी कॉल इट इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, EC2 मशीन्स और EC2 इंस्टेंस. सो इंस्टेंस बेसिकली इज अ मशीन, EC2 machine. So we launch a machine. I will just show you right now कैसे कर सकते हैं. Again, Amazon, I have told you a couple of times that Amazon will keep on changing the GUI. Amazon keeps changing the GUI. Okay. So recently, last month, they have changed this GUI. Okay. So when you are referring to guide, when you are referring to YouTube or any some article, they might show you the previous versions. Okay, previous जो GUI है उसका आपको शायद दिखे, so don't get confused.
ऑलवेज रिमेंबर द, वो जो भी चीज़ें होगी वो सेम ही रहेगी, बस जीयूआई चेंज होता रहता है. Okay, so I will explain you each and everything one by one, but as of now just I want to show you how I can take a EC2 machine. ठीक है, अभी एक एक स्टेप मैं आपसे करवाऊंगा. आई विल शो यू वन each and every step one by one, but abhi I'm just going to show you that I can log in into EC2 machine. So right now I'm logging into Linux machine. I will also show you the one Windows machine. आपके लिए मैं विंडोज में लॉगिन कर लेता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए. फ्री टायर. मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट आई टोल्ड यू टुडे आई एम नॉट गोइंग टू. अभी आप को नहीं करना है, अभी मैं कल आपको एक एक स्टेप बताऊंगा. ओके, अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं. मैं आपको EC2 में लॉगिन करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, कल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे एक एक स्टेप करना है. ओके, सिक्योरिटी ग्रुप RDP. ठीक है, ऑल गुड. तो देखिए अभी कितनी देर में मशीन स्टार्ट हो जाता है. ये मशीन स्टार्ट भी हो गया. कितना टाइम लगा मुझे मशीन को बोले हुए? 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा. इट टेक 1 to 2 minutes टू मशीन गेट स्टार्टेड, इवन लेस देन 1 minute नाउ डेज. ये वाला ऊपर वाला मशीन भी देखना स्टार्ट हो जाएगा. जो लाइनक्स, ये जो हमने मशीन लिया वो उबंटू में लिया, लाइनक्स पे लिया, नॉट उबंटू. लाइनक्स मशीन लिया, ये विंडोज मशीन लिया अमेजोन से. तो मैं पहले इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है. मीनवाइल ठीक है, विंडोज़ में थोड़ा टाइम लगेगा लॉगिन करने में. मीनवाइल मैं उबंटू में आपको लॉगिन इसमें दिखाता हूँ, लाइनक्स में लॉगिन करके दिखाता हूँ. कनेक्ट. आजकल डायरेक्टली अमेजोन ने ऑप्शन दिया है कि मैं डायरेक्ट कंसोल EC2 मशीन को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ ब्राउज़र से. सो ये मैं लाइनक्स मशीन में लॉगिन हो चुका हूँ. तो दिस मशीन आई हैव टेकन फ्रॉम अमेजोन एंड वी कैन डायरेक्टली लॉगिन इनटू दिस मशीन. सो जिसको लाइनक्स आता है दे कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या क्या है. जिसको नहीं आता दे हैव टू लर्न अ लिटिल बिट लाइनक्स बेसिक कमांड. सो दिस इज लाइनक्स मशीन. ओके, मीनवाइल विंडोज मशीन में देखते हैं कनेक्ट करने का कंसोल से देता है क्या. सेशन में मना कर रहा है, DP हमने कर लिया है. पासवर्ड डिकोड करना है. पासवर्ड डिकोड करने के लिए टाइम दे कह रहे हैं. ठीक है, सो ये हमने EC2 मशीन जो लाइनक्स लिया था उसमें हम लॉगिन कर चुके हैं.
ठीक है, दिस आर द फ्यू कमांड यू कैन सी, दिस आर Linux, Amazon Linux machine. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो Linux मशीन? कभी भी काम नहीं किया है ब्लैक स्क्रीन पे? सबने काम किया है? ओके नाइस तेजस, ओके बाकी सबको आता है? ओके, किस कोई ऐसा है जिसको नहीं आता बिल्कुल भी, पहली बार दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन, बेसिक्स भी नहीं आता? चलो ग्रेट, इफ एवरीबडी नो बेसिक्स इट विल बी ग्रेट. सो ये पता है ना, df-kh कमांड, cd कमांड, pwd, ये सब पता है? आई विल शो यू एक सेशन फटाफट, बट इफ यू डोंट नो द बेसिक ऑफ लाइनक्स कमांड, हमारे पास EC2 में मैंने लिखे हुए हैं बेसिक्स लाइनक्स कमांड करके रहेगा, और इवन यू कैन सर्च ऑनलाइन एंड डू अ लिटिल प्रैक्टिस. ठीक है, ओके. March 22. So you can see I have logged into another machine. ये विंडोज का मशीन है, ये टर्मिनल है, उसमें एक नया मशीन बन रहा है. सो एक हमने लाइनक्स मशीन बनाया, एक विंडोज का मशीन बनाया. कितना टाइम लगा स्टार्ट होने में या मुझे अवेलेबल होने में? लाइनक्स में मैंने फट से लॉगिन कर लिया. इवन विंडोज मशीन वॉज रेडी, बट वो पासवर्ड एनक्रिप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो यू कैन सी एक मशीन क्रिएट किया अमेजोन ने. इस मशीन के अंदर आपको जो करना चाहिए कर सकते हो, वट एवर यू थिंक्स यू रिक्वायर्ड. आप इसमें गेम खेल सकते हो, इसमें आप अपना नया कुछ सॉफ्टवेयर चला सकते हो विच यू कांट रन इन योर लोकल सिस्टम. अभी तो मैंने 1 GB का लिया ये. ओके, दिस इज ओनली 1 GB, बट यू इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट वेयर योर लोकल सिस्टम इज ऑफ लोअर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायर्ड अ ह्यूज मशीन, आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, ग्राफिकल डेवलपमेंट करना चाहते हो, जहाँ पे आपको यूज मशीन चाहिए, ग्रुप यूज CPU और GPU चाहिए, सो आप अमेजोन से ले सकते हो घंटे के हिसाब से. सो यू कैन सी द मेमोरी हियर. ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड है, अभी ऑन डिमांड है. सो यू कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन, IP एड्रेस, अवेलेबिलिटी जोन 1A. ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन लिखा है उसने, आर्किटेक्ट AMD का उसका हार्डवेयर है, टोटल मेमोरी उसका 1 GB है. ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच अमेजोन इज गिविंग अबाउट दिस मशीन. सो ये मशीन हमने अमेजोन से रेंट पे ली है. इसके जो हार्ड डिस्क है, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? S3 में स्टोर होगा या इसका कुछ अलग हार्ड डिस्क होनी चाहिए? देखो इसकी हार्ड डिस्क है 30 GB की. तो इट विल बी सिमिलर टू व्हाट यू हैव रनिंग. ठीक है, आप इसमें जाके देख सकते हो, सब पर्सनलाइज कर सकते हो. तो ये मशीन हमने अमेजोन से ली है. ओके, व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी? अभी आप फ्री टायर में हो तो यू कैन यूज़ फ्री टायर सर्विसेज, वो मैं आपको फिल्टर करके बता दूंगा आप कैसे देख सकते हो. एनी क्वेश्चन? So this is the basics of EC2 machine which we have started today. Any question? समझ आया अमेजोन कैसे ये बड़े रैम को या कैसे डेटा को स्प्लिट कर फिजिकल सर्वर को स्प्लिट करके देता है? सो एवरी